everyone. I am Badhu Japir and I have my co-mates and students today. We are going to discuss and debate about some interests of class 9 students. Introduce yourself. Don't be shy. Okay, come on. My name is Tarthi Singh and I'm a class 9 student. Okay. I have many hobbies like painting and sporting, etc. That's great. Definitely great. And you? My name is Shubhrishan. I am of standard 9C. I love to have playing badminton and sketching. Okay, that's great. So both of you have this common interest of art, right? Yes. In the different forms, sketching and painting. So I let's like talk. all forms. You like in all forms. You like sketching also. You like painting? Sketching and coloring. Coloring. Okay, that's great. So if let's talk about the similar interests first. It is okay to talk in English? Yes, ma'am. Okay. With the paintings, what kind of colors do you choose? What kind of textures do you choose? You know about texture coloring. Yeah. You know about oil paints and acrylic paints and what's all new glass paints. I know only these three categories by itself. So please tell me about these interests, which your hands magically choose when you paint. I prefer the best way is the pencil shading, Pencil shading, and the most beautiful way is the Madhubani art. Madhubani art. That's Yeah. great. And what about Shiv? Do you prefer sketching the human form face or animals or some landscapes? Human faces and animated movies characters. Okay, and then you color them or you pencil sketch My them. pencil sketch. Okay, you know about this word etching? No. Okay, I do not recall it quite properly. Maybe the word is incorrect. I had heard this or read myself in class 9th or 8th. That making patterns in sketching, Yeah. this is called etching. While when you sketch and you make smaller patterns doing this sketching, this is called etching. Do you know about art of sculpturing or making something out of clay and mud Yeah. or pottery? Have you done it ever? Yeah, with clay in In childhood. school or projects, right? Yes, ma'am. Okay, definitely. Okay. So, what are your current interests? Or what do you like to do more often? First preference, let's talk about social media. Are you both on social media? What apps do you use? Snapchat and Instagram. Snapchat and Instagram. And you? WhatsApp and Snapchat. Snapchat, WhatsApp and Snapchat. You are not on Instagram. Okay. This is under your parents' surveillance? Yes, ma'am. Both of you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, I trust these words. I know my students are very sincere. Okay, fine. I am on Facebook, Instagram. I was on Snapchat, but that is too it is a task to do everything. Click this, click this, click this, and send. And because I have a very good contact list, so I just deleted it out of the tension that I am not very good to keep the streaks. And I think the streaks are new terms to maintain relations. I basically like Snapchat for because it's have different types of lens. Okay. In case of any traveling or any adventurous things, So you can I like- make those kind Yeah. of good. any lens or in a funny lens, like anything. That's great. So you don't share the streaks or you don't maintain the streaks. With a few people, Only with classmates. Okay, that's great. And what about your studies now? Because as in your these interests, you play games, both of you, right? You play badminton, you play TT, right? And this is also somewhere a similar thing. There are some similarities in TT and badminton. I guess so because the sports itself has one rule to be dedicated, to be constant. I'm not talking about the TT के क्या बोलते हो उसको होल्डर को या जो भी आप हाथ में लेते हो ब्रैकेट या बैट. बैट या ब्रैकेट हो उसको मैं कंपेयर नहीं करती हूँ रैकेट से बट कुछ स्पोर्ट्समैनशिप एक ही होती है, Sports- हार जीत से कोई मतलब नहीं है. हाँ तो उसके बारे में मुझे थोड़ा जानना था. आई एम क्वाइट मुझे खुद बैडमिंटन खेलने का बहुत मन था. आई टोल्ड यू द डे आई काउंसिल यू बट मैं वो कर नहीं पाई कभी. या तो मेरी हाइट लंबी और सामने वाला मेरे से ये हो जाता है और जब मैं सर्विस करती हूँ वो मेरी सर्विस अच्छी नहीं होती. तो ऐसा पॉइंट जो अब शायद मेरे को चाहिए आपसे कि मैं वो ठीक कर लूँ. कोई चांसेस? Now we have to build up that strength of servicing. We have to try by ourselves of servicing.
Our self of service. Yes, ma'am. So, okay, that's good. I will keep that point to me. Any sport requires physical and mental dedication. That's the common thing in every sport. Okay. Mental and physical dedication. So I have to give it the good amount of time, consistent time every day or every Yeah, week, half an hour. Yeah. Half an Not hour. Not Yeah. like alternatively. alternatively, but consistent. Yeah. ठीक है, अगर आज मैं 1 घंटा या आधा घंटा दे रही हूँ, कल भी आधा घंटा 20 मिनट देनी चाहिए, ऐसा तब मैं इम्प्रूव करूँगी। तो आपको नहीं लगता यहाँ पर अगर हमने कंसिस्टेंसी की टर्म यूज की, जो आपने मुझे रिकमेंड किया, वो हमारे स्टडीज पे भी अप्लाई होता है? Yeah. ओके, आपकी स्टडीज में बेसिक या पर्सनल प्रेफरेंसेस क्या होते हैं? कौन से टॉपिक्स पढ़ना अच्छा लगता है? एकेडमिक्स की बात नहीं करेंगे अभी, एकेडमिक्स पे आगे मुझे और बातें करनी है आपसे, सीरियस टोन्स पे भी, बट आपको पर्सनली क्या पढ़ना पसंद है? मैम पर्सनली मैम मिस्टीरियस थिंग्स जो मतलब अभी तक मिस्ट्री बनी हुई है, जैसे सी क्रिएचर्स वगैरह, फिर हाँ। स्पेस वगैरह से रिलेटेड। ओके, आपको Astronomical मयान things. कैलेंडर के बारे में पता है? ओके, आप इस टर्म को समझिएगा क्योंकि मैं हिस्ट्री टीवी 18 देखती थी एक टाइम पे, और वहाँ रात को एलियंस उतरते थे अर्थ पे, किसी का ऑपरेशन कर रहे हैं, ऐसा मुझे कुछ ऐसी ही ग्लिम्स याद है और बहुत टाइम पहले देखी है। तो मायान कैलेंडर हैज़ अ लॉट ऑफ मिस्ट्रीज, तो शायद ये चीज़ आपको हेल्प करे अभी नेक्स्ट किसी नॉलेज के लिए। और कृष्णन, आप कैसी चीज़ें इंटरेस्टफुली पढ़ना पसंद करते हो? Of stories of imaginary stories. Imaginations, that is called as फैंटेसी। friction. फ्रिक्शन वो चीज़ होती है जो हमने खुद क्रिएट की होती है, एंड नॉन फ्रिक्शन रियलिटी होती है, And mysterious also that have a. I like that kind also. दैट काइंड ऑफ फ्रिक्शन। तो किस टाइप की फ्रिक्शन, लाइक एनिमेटेड। Animated. कौन सी मैम कोई- जापानीज में एक स्पेशल होती है इंडस्ट्री, Anime. एनिमे इंडस्ट्री। एनिमे हाँ, इंडस्ट्री? वो action वो है। है ना, वो जिसके ऐसे बाल होते हैं, वो जो वो खाता है कुसु को, क्या नाम है उसका? मैम वो अलग अलग एनिमे के अलग अलग मतलब शोज रहते हैं, अलग अलग सीजन्स रहते हैं, एपिसोड्स। Books are like manga. हाँ, पहले वो उसका क्या नाम है जो वो खाता है, वो बोल, जो कोरियन बोल खाता है, बहुत नूडल्स होते हैं उसमें, उसमें अलग अलग वेजिटेबल्स होते हैं, जैसे करके खाता है, जैसे something- Food Wars में था. Sasuke. Soma Yukihara. Okay, Soma? Soma Yukihara. Soma Yukiya, Yukihara. Yukihara, Yukihara. okay. मैंने नहीं देखा था, मैंने बस एक ग्लिम्स देखी थी, और जिसमें जो देख रहा था ना, मैं उसके नूडल्स पे ही फोकस कर रही थी। The noodles seems to be very tasty. मैम वाज ही निंजा। No, I don't know, उसके excessive बाल थे, मैम और येलो कोई कलर के येलो बैंड कलर। था, pink। Ma'am, that will be मैम Soma यहाँ Yukihara. पे लीफ टाइप का साइन बना था मैम। ऐसे कुछ चाइनीज करके यहाँ पर था मिड में। Ma'am, white color हाँ, band. और मैम हाँ, येलो that कलर was के Soma हेयर्स Yukihara. थे। हाँ, हाँ। यस मैम, दैट वाज नारुतो। नारुतो, यस नारुतो था वो। नारुतो एक एनिमे है जो कि स्पेशली निंजास के ऊपर बेस्ड है, जापानीज निंजास के नारुतो, ऊपर। नारुतो। एंशिएंट्स की बात है। उसमें नारुतो नाम का एक कैरेक्टर रहता है जिसके लाइफ में कुछ स्ट्रगल्स रहते हैं, उसको तो दिखाया जाता आप है। ये पूरी जो भी आप ये पढ़ते हो, ये देखते हो, आप इसको जापानीज लैंग्वेज में देखते हो या इंग्लिश डब। इंग्लिश डब? तो उसमें जापानीज टाइटल्स होंगे, सबटाइटल्स होंगे? Ma'am, subtitles. मैम रहता है अगर off. जापानीज में देखते हैं तब इंग्लिश सबटाइटल्स रहते हैं। तो आप जापानीज समझ पाते हो, कोई वर्ड्स वगैरह इंटेक कर पाते हो? मैम बहुत छोटे छोटे। मतलब पढ़ते पढ़ते मतलब कि थोड़ा सा वो हो जाता है, familiar हो जाता है words. मैम बहुत थोड़े थोड़े वर्ड्स। थोड़े थोड़े से कितने Family. वर्ड्स अभी तक आपको लगता है कि आपने समझा? मैम 15 to 20। 15 to 20। और ये आप कब से देख रहे हो? मैम करीब Ma'am, last लॉकडाउन 6 जब से स्टार्ट हुआ Yes, तब से। Ma'am, but from last 6 months. आपने लास्ट 6 मंथ्स से Last 6 months to 1 year. to 1 year, ओके। दिस इज सिमिलर कि जब आपके पास plenty of टाइम था पैंडेमिक में, तब आपके ये अलग अलग इंटरेस्ट ग्रो हुए। तो फॉरेन लैंग्वेजेस सीखना, लाइक डिफरेंट लैंग्वेजेस सीखने से हमारा ब्रेन शार्प होता है। दिस इज अ रिसर्च, ओके। तो आप अपनी इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, इसके आगे कौन सी लैंग्वेज जानते हो? German. जर्मन, यू स्पीक जर्मन एंड राइट जर्मन? Ma'am, not that much well. But you stand for the German, right? Little bit of coordination. Coordination. अगर मैं जर्मन के किसी इंसान को लाऊंगी, आप उसको थोड़ा मोड़ा करके बेसिक्स करके Yes, ma'am. you can solve it. And you? मैम I am basically surrounded with the environment of Bengalis and I Okay. like that language also. Okay, so that's great. That's our Indian language. तो बंगाली में मेरे को एक लाइन सिखाई गई थी।
मुझे नहीं पता बिकॉज हम कश्मीरी स्पीकर, आई डोंट नो व्हाट इज द इंटरप्रिटेशन, क्लास के बाद मिलते हैं, पता नहीं क्या बोल दूँगी। मैंने कुछ कलर्स वगैरह के नाम सीखे थे तब, मैंने एनिमल्स के नाम सीखे थे, मैंने पानी मांगना सीखा था, मैंने रिलेशंस के नेम बड़े भाई को दादा, बॉदी, भाभी को बॉदी, ऐसे करके नेम्स कुछ सीखे थे। तो मेरे को बहुत फैसिनेटिंग लगा दूसरे कल्चर और दूसरी लैंग्वेजेस को सीखना। आपको ऐसे इंटरेस्ट फील होता है? या ऐसे फीलिंग्स होती है? दूसरे के कल्चर में उसकी चीज़ें सीखना है, सब बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। मतलब कि बोलना नहीं आता, लेकिन पूरा समझ में आ जाता है। ओके, दैट्स द सेम पॉइंट। बंगाली समझ में आते, भले बोलने में थोड़ा हिचकिचाहट हो, लेकिन समझ में पूरी तरह से आती है। ओके, दैट्स ग्रेट, आई टोटली अंडरस्टैंड। तो हमें इस पूरे कॉन्वर्सेशन में मैंने हाईलाइट किया कि आप लोगों को आपकी इंटरेस्ट स्पोर्ट्स में है, अदर देन एकेडमिक्स, ठीक है, जिसमें आपको चाहिए होती है कंटिन्यूटी, कंसिस्टेंसी, ठीक है, और एक सेल्फ डिसिप्लिन, राइट। और नेक्स्ट हमारा क्या था? एनिमेशन आपकी एक कॉमन इंटरेस्ट है दोनों की, इसी से शायद आपकी इंस्पिरेशनल वो ड्राइंग वाली ये भी है क्या दोनों की? वो पेंटिंग वाला जो एस्पेक्ट है। और तीसरा आपके सोशल मीडिया में आपकी फोटोग्राफी वगैरह में इंटरेस्ट है दोनों को? या यू डोंट लाइक फोटोग्राफी ऐसा कोई, ठीक है, तो ये चीज़ है डिफरेंट। तो मुझे आप बताओ कि ये सारी जो चीज़ें आप करते हो, क्या आपको टाइम मिलता है अपने एकेडमिक्स के बाद ये करने का? कुछ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है एकेडमिक्स के साथ? On Sunday, mainly on Sundays, drawing. You drawing, and you too go for maybe a drawing class on Sunday, right? But I keep the consistency, like in 2 to 3 days I Draw something. Something means a rough sketch. It's not to forget it. That's not important. So with consistency, how do you think these kind of self-discipline, consistency, dedication, trying to understand into new language and trying to learn from new researchers, this can be applicable to your academic growth, your educational curriculum? Yeah. This can be. These are the core principles which are everywhere applicable. इस ब्यूटीफुल इंटरेक्शन में मैंने सीखा 9th क्लास स्टूडेंट्स से ही हमने जाना कि उनके डे टू डे लाइफ में ऐसे बहुत सारे काम हैं जो वो करते हैं बाय इंटरेस्ट, और उनसे वो लोग उसमें क्या ऐसी कॉमन चीज़ है जिससे हम इंस्पायर होके हमारे एकेडमिक्स यानी जिसमें हमें लेस इंटरेस्ट है उसमें हम उसको अप्लाई कर सकें। कंसिस्टेंसी, अगर हम कंसिस्टेंट है अपने किसी भी प्रोसेस में, किसी भी काम में, तो देयर इज कॉन्फिडेंट अबाउट कि आपको एक सक्सेस मिलेगी, उससे आपको इससे सक्सेस ज़रूर मिलेगी अगर आप अपने काम में कंसिस्टेंट हैं। डेडिकेशन, डेडिकेशन क्यों? डेडिकेटेड आप होंगे तो आप जहाँ पर भी जो भी काम कर रहे हो, वेदर इज स्टडीज, रीडिंग अ बुक, सॉल्विंग मैथ्स इक्वेशंस, सॉल्विंग केमिस्ट्री, अगर डेडिकेटेड हो, आप सिंसियर हो उस चीज़ को लेके, देयर इज 100% चांस कि आप थोड़ा भी टाइम दोगे एक फ्रूटफुल रिजल्ट निकलेगा, एक शॉर्ट टर्म गोल आपको अचीव होगा। और पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि ऐसा बहुत बारी अब होगा आप लाइफ फेज में हो कि अब आपको क्विक रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, तो हमें चाहिए कि हम पेशेंट रहें चीज़ों के साथ, हम कंसिस्टेंट रहें, हम डेडिकेटेड रहें और पेशेंट रहें, ताकि हमें क्या मिले? सक्सेस मिले। तो देयर आर दीज स्मॉल स्टेप्स जो आपको अपने शेड्यूल में, अपने रूटीन में, अपने लाइफस्टाइल में इंक्लूड करने हैं। लाइफ के किसी भी गोल के लिए आपको इन 4 चीज़ों को समझना है कि जब आपके पास कंसिस्टेंसी है, आपके पास उस चीज़ की डेडिकेशन है, उस चीज़ के लिए पेशेंस है, तो आप क्या अचीव कर पाएंगे? सक्सेस। Thank you so much, students. It was a great interaction with you. With now, for such kind of beautiful videos with Motion Nights, stay tuned with this channel. Thank you so much.